Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am here to inform about UPSC CDS second 2020 written exam result out. Check yours. And for those who wish to dream of, let us discuss about UPSC CDS exam under age, qualification, mode of exam, courses, syllabus, fee, how to apply points. मैं ये बताने के लिए कि यूपीएससी सीडीएस सेकंड का रिज़ल्ट आउट हो गया है, आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और वे लोग जो इसके लिए स्वप्न देख रहे हैं उनके लिए हम आयु, योग्यता, एग्ज़ाम का मोड, कोर्सेज, पाठ्यक्रम, फी और कैसे अप्लाई करें, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यूपीएससी सीडीएस सेकंड 2020 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम रिटन एग्जाम रिजल्ट आउट। चेक योर्स बाय विजिटिंग ऑन यूपीएससी साइट। यूपीएससी साइट पर विजिट करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन CDS Combined Defense Services. For those who wish to dream of, let us discuss about UPSC CDS exam. जो UPSC CDS का स्वप्न देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आइए आयु, योग्यता, एग्ज़ाम का मोड, कोर्स, सिलेबस, फ़ी और कैसे अप्लाई करें पर चर्चा करते हैं। एज इज़ 20 to 24 years to apply. Educational qualification. Here for IMA and officers training academy, qualification required is degree of a recognized university or equivalent. For Indian Naval Academy, degree in engineering from a recognized university or institution. For Air Force Academy, degree of a recognized university with physics and mathematics at 10+2 level or Bachelor of Engineering degree. Here we have mentioned qualification for IMA, Indian Military Academy, degree from a recognized university or equivalent. INA, Indian Naval Academy, degree in engineering from recognized university or institute. AFA, Air Force Academy, degree with physics and mathematics at 10+2 level or Bachelor of Engineering. Mode of exam, OMR based written. Here use of black pen is allowed. And for the objective questions, ovals will be there and these correct option to be filled with black pen. No calculator use is permitted. Courses IMA, INA, AFA. Indian Military Academy, Dehradun. Indian Naval Academy, Azimala, Kerala. AFA, Air Force Academy, Hyderabad. OTA SSC, Man. Officers Training Academy, Short Service Commission, Men, Chennai. OTA SSC Women, Officers Training Academy, Short Service Commission, Women, चेन्नई। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो कोर्सेज हैं जिनके लिए ये CDS एग्ज़ाम होता है उसमें शामिल हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी कोर्सेज, इंडियन नावल एकेडमी कोर्सेज, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कोर्सेज, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मैन एंड वुमेन कोर्सेज।
syllabus. Here it is very important to say sometime the caliber which we have is much more high than we thought of. So, since many of us might be preparing for the clerk, POs, SSC, railways, then for the same qualification, graduation based, why not to try for the defense services also? So for that syllabus point of view, these 4 subjects are mentioned: English, general knowledge, elementary mathematics, intelligence and personality test. English. The question paper will be designed to test the candidates' understanding of English and workmanlike use of words. जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हमारी योग्यता का स्तर हमारी सोच से, हमारी जानकारी से परे होता है। ऐसे में हम कई बारी क्लर्क, पीओ, एसएससी एंड अदर पोस्ट्स के लिए तैयारी कर ही रहे होते हैं, तो क्यों ना डिफेंस सर्विसेज के लिए भी इसी योग्यता के साथ तैयारी का हाथ बढ़ाएं। ऐसे में जो इंग्लिश पेपर है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि कैंडिडेट की अंग्रेजी समझने की योग्यता और वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स को परखा जा सके। जनरल नॉलेज includes the knowledge of current events and matters of everyday observation and scientific aspects, history of India and geography of nature, as expected of an educated person able to answer without special study. जनरल नॉलेज के अंतर्गत करंट इवेंट्स और हमारी हर दिन पर आधारित जो मैटर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, भारत का इतिहास और जियोग्राफी के बारे में ज्ञान शामिल है। और ये ऐसा ज्ञान है जो कि बगैर स्पेशल तैयारी के भी एक एजुकेटेड पर्सन जवाब देने में सक्षम हो, ऐसा उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसा उससे उम्मीद की जाती है, उस पर आधारित है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इंक्लूड्स एरिथमेटिक्स, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं। एरिथमेटिक्स इंक्लूड नंबर सिस्टम and number system, natural number, integers, real and rational number, fundamental operations, plus, minus, multiply, division, square roots, decimal fractions, unitary method, time and distance, time and work, percentage, simple and compound interest, profit and loss, ratio and proportion, variation. Algebra includes basic operations, simple factors, remainder theorem, HCF, LCM, theory of polynomial, solution of quadratic equation, linear equation, laws of indices, set language and set notation, rational expression and conditional identities. यदि हम ध्यान से देखें तो एरिथमेटिक और एल्जेब्रा के अंतर्गत अभी तक जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं पाठ्यक्रम में, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ ही रहे हैं। ऐसा कुछ नया नज़र नहीं आ रहा है जिसे हम लोग
अपनी प्रिपरेशन में लेकर नहीं चल रहे हैं. सो वी एम्फसाइज हियर दैट थिंग्स आर वेरी रिलेवेंट टू दी अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो. दूसरे एग्ज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें ही हैं, ये कुछ अलग से नहीं हैं. ट्रिग्नोमेट्री. इन ट्रिग्नोमेट्री साइन, कोसाइन, टेंजेंट, for those value of x is given 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree, and also sometime value of x that is greater than or equal to 0 degree and less than or equal to 90 degree. Simple trigonometric identities, use of trigonometric tables, simple cases of height and distances. These are covered under trigonometry. Geometry, lines and angles, plane and plane figures, theorems on properties of angles at a point, parallel lines, sides and angles of a triangle, congruence of triangle, similar triangles, concurrence of medians and altitudes, properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, circle and its properties including tangent and normals, loci. सो ज्योमेट्री के अंतर्गत ये सब कवर किया जाता है. मेंसुरेशन, एरिया ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल एंड सर्कल, एरियाज ऑफ फिगर्स विच कैन बी स्प्लिट अप इनटू दी figures like field book, खेतों का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन, लेटरल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड सिलेंडर, कोन, शंकु और बेलन का सरफेस एरिया और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, गोले का आयतन और क्षेत्रफल, ये मेंसुरेशन के अंतर्गत सिलेबस में शामिल हैं. स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, हिस्टोग्राम्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत स्टैटिस्टिकल डेटा का कलेक्शन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट के तहत, एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं. तो ये स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत शामिल है. इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट. द एसएसबी प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों शामिल हैं. ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर द स्टेज 1 आर परमिटेड टू अपीयर फॉर स्टेज 2. स्टेज 1 में क्वालिफाई हुए कैंडिडेट स्टेज 2 में शामिल होंगे. स्टेज 1 कंप्राइजेज ऑफ ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग शामिल है, जिसमें पिक्चर परसेप्शन, डिस्क्रिप्शन टेस्ट शामिल होंगे. एंड इन स्टेज 2 कंप्राइजेज ऑफ इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट एंड कॉन्फ्रेंस. These tests are conducted over 4 days. स्टेज 2 में इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ें
होंगी। ये 4 दिन तक चलने वाले हैं। The details of these tests are given on the website www.joinindianarmy.nic.in। इस साइट पर ये अच्छे से दिए हुए हैं। Personality of candidates is assessed by 3 assessors, that is IO interviewing officer, GTO group testing officer, psychologist. This is done to bring out presence and absence of officer-like qualities and trainability of a candidate. प्रतिभागी की पर्सनैलिटी को 3 असेसर्स द्वारा, जो कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, के द्वारा चेक किया जाता है। और ये इसलिए कि जो प्रतिभागी है उसमें ऑफिसर लाइक जो क्वालिटी हैं वो हैं या नहीं हैं, और उसकी ट्रेनेबल एबिलिटी है या नहीं, उसको परखने के लिए किया जाता है। फी कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग फीमेल और SC और ST कैंडिडेट मीन्स फीमेल SC ST कैंडिडेट, these are exempted from payment of fee. For rest of the candidates, fee of ₹200 only. And this can be deposited in SBI branch by cash or by using net banking facility, by using Visa or Master or Rupee credit or debit card. Scheme of examination. Here it is shown the written examination for IMA, INA and AFA includes English 2 hours 100 marks, GK 2 hours 100 marks, elementary mathematics 2 hours 100 marks. So total for 300 marks, and interview for 300 marks. For OTA there are only 2 subjects, English 200 hours 100 marks, GK 2 hours 100 marks and interview 300 marks. How to apply? Candidates are required to apply online using the link www.upsconline.nic.in। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को upsconline.nic.in पर विजिट करना होगा और वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। The applicants are advised to submit only single application. Applicants को सलाह दी जाती है कि वो एक ही एप्लीकेशन जमा करें। However, if due to any unavoidable solution, फिर भी किसी तरीके से अगर गलती से इधर से उधर हो जाता है तो एप्लीकेंट्स डिटेल जैसे एग्जामिनेशन सेंटर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फ़ी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद ही पूरा माना जाएगा।
Applicants who are submitting multiple applications should note that only the application with higher RID registration ID shall be entertained। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आईडी उसकी है उसी को एंटरटेन किया जाएगा जिसमें कि फ़ी पेमेंट हो चुका है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, चाहे आप जितनी भी एप्लीकेशन अप्लाई करें, लेकिन जिसके लिए फ़ी पेमेंट हो चुका है उसी आईडी को माना जाएगा, वही मान्य होगा। सो इन नटशेल, संक्षिप्त में, वी हैव ट्राइड टू ब्रॉट फॉरवर्ड the information related to UPSC CDS एग्ज़ाम। संक्षिप्त रूप में हमने संघ लोक सेवा आयोग, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी यूपीएससी के नोटिफिकेशन को अध्ययन करने के बाद शेयर किया है। इसमें हमारी तरफ से कुछ भी ना जोड़ा गया है ना कहा गया है। इसलिए जो कैंडिडेट सीडीएस में अप्लाई करने के इच्छुक हैं वो यूपीएससी की साइट पर विजिट करें और उनका दिया हुआ नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद भविष्य में जब भी वैकेंसी निकलती हैं तो अप्लाई करने के बारे में सोचें। हमारा यहाँ पर डिस्कशन करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो सिलेबस था उस पर हमने फोकस डाला है, क्योंकि इसका भी सिलेबस जिन एग्ज़ाम के लिए हम लोग लगे हुए रहते हैं उन्हीं से काफ़ी जुड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम क्वालिफ़िकेशन भी ग्रेजुएशन ही है। सो इफ़ वी आर फिजिकली एंड मेंटली फिट we can thought of this also। Thanks for watching, thanks for being on our channel। धन्यवाद।